Good morning, students. Today we are going to start chapter 10 of class 7th science, that is transportation of substances in plants and animals. In this chapter we will discuss how transportation of substances takes place in animals and humans, how our circulatory system works, and how excretion takes place in animals and humans. Besides this, we will also discuss the transportation of substances in plants. So first of all, since we are talking about transportation, my first question is, what is transportation? Transportation होता क्या है? So basically, the transportation is the movement of objects, people, things from one place to another. जब हम ऑब्जेक्ट्स को, किसी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली वी नीड ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो उस ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी आउट करके ले जा सके. फॉर एग्जाम्पल, इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ए कंट्री that includes car, bus, truck, ships, and so on. Besides country, all living things, both plants and animals, including men, also need a transport system. Can anyone tell why human body needs a transport system? हमें क्या ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की? The reason being the movement of materials from one cell to another cell. We know in human body, two cells are far away from each other and materials are needed to be moved from one place to another place. And for this movement and for this transport, we need a transportation system in animals. So now we will discuss about how transportation takes place in animals. We know all organisms need food, water and oxygen for their survival. And the intake of food and water starts from mouth, while that of oxygen starts from nostrils or nose. So all these materials need to be transported. Waste also need to be transported. The system that carry out these functions means the transportation of food, water, oxygen, different materials, energy, and waste. A system that includes, that carry out all these functions is known as circulatory system. Means the circulatory system is a transport system in the human body which consists of a network of blood vessels that supplies food, water, oxygen throughout the body and removes waste product from the body. मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स का लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है एक सेल से दूसरे सेल तक, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट. तो एक ऐसा सिस्टम जो ये सारे फंक्शन कैरी आउट कर रहा है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का भी और एक्सक्रीशन का भी, ये दोनों के फंक्शन जो कैरी आउट कर रहा है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. सो द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: ब्लड, blood vessels and heart. First we will discuss about blood, then blood vessels, and then we will move to the heart. So what is blood? Blood क्या होता है? We all know that blood is a liquid that flows, right? Basically blood is a red color fluid that flows in our body through the blood vessels. ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में फ्लो करता है. फंक्शंस क्या होते हैं ब्लड के? व्हाई वी नीड ब्लड? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड? द ब्लड एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंसेस. ब्लड सिर्फ हमारी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करता, ये सर्कुलेट करते टाइम एक बॉडी पार्ट से एसेंशियल सब्सटेंसेस को लेता है और सर्कुलेट करते टाइम वो वही ब्लड उन सब्सटेंसेस को दूसरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है. सो ब्लड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन पार्ट इन एनिमल्स. इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी.
ये हमारे लंग से ऑक्सीजन को लेता है और डिफरेंट बॉडी सेल्स में, डिफरेंट सेल्स में उसको ट्रांसपोर्ट करता है. इट ऑल्सो कैरी आउट वेस्ट मटेरियल टू द किडनीज विच देन फिल्टर्स द ब्लड and the small intestine digest the food and absorb the nutrients. जितने भी हमारी जो ऑक्सीजन होती है हमारे लंग से ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी सेल्स में पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है. हमारे पूरे बॉडी से जितना भी रिमूवल होता है, जितना भी वेस्ट रिमूवल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको किडनी तक ट्रांसपोर्ट करने का काम भी हमारा ब्लड करता है. सो ब्लड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the circulatory system. It also helps in maintaining a constant body temperature. Remember, it also helps in maintaining a constant body temperature. Now, since we have discussed, we know what blood is, we will discuss about the composition of blood or the different parts of blood. Blood consists of basically 4 parts: red blood cells, white blood cells, platelets and plasma. If you were to see a drop of blood under the microscope, you would be amazed to find that blood is actually a mixture of liquid and cells both. Means blood में liquid भी present होता है और cells भी present होते हैं. 2 main component इसके कौन से होते हैं? Blood plasma और blood cells. Means basically the blood is divided into 2 parts, blood plasma and blood cells. प्लाज्मा वो लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का और ब्लड सेल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल. द फर्स्ट वन इज ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा, एज आई टोल्ड यू, कि जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्लाज्मा. Blood plasma is the liquid substances present in the blood. You know, almost 55% of the blood is blood plasma, means most of the portion of the blood is in liquid form. Plasma का वर्क क्या होता है? It facilitates the transportation of different substances throughout the body. कोई चीज़ जब लिक्विड में होती है, ये गैसेस फॉर्म में होती है, तभी तो वो मूव करती है, राइट? तभी तो उसका फ्लो होता है. हमें पता है कि लिक्विड और गैसेस फॉर्म्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फ्लो करती हैं. यहाँ पे प्लस जो ब्लड प्लाज्मा है हमारा, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, सो इट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और जब ये फ्लो करता है तो ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है. सर्कुलेट होते टाइम ये जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं इनको हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाने का काम करता है. ब्लड प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड शुगर. मीन्स इन सब से मिलके हमारा ब्लड प्लाज्मा बनता है. नाउ वी विल मूव टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. जो ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे लिक्विड के सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं और ये 45% प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? टोटल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड आर ऑफ 45% एंड 55% इज ब्लड प्लाज्मा. Basically, blood cells are of 3 types: red blood cells, white blood cells and platelets. Now first is red blood cells. Red blood cells क्या होते हैं? Red blood cells हमारे cells में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. That is about 40% to 45% हमारे red blood cells होते हैं. These cells are red in color. That's why they get the name red blood cells. Because they contain a special red pigment known as hemoglobin. रेड ब्लड सेल्स में एक रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स हमें रेड अपीयर होते हैं. अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? यू नो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स की लीव्स को ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है. वैसे ही हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ब्लड सेल्स को रेड कलर इम्पार्ट करता है. सिंपल. The oxygen we take in binds itself with the hemoglobin and hence reaches every cell of the body through the blood. अब जो ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, जो हमारे लंग्स में जाती है, प्यूरिफाई होती है, वो ऑक्सीजन कैसे हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है? वो ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स के साथ कंबाइन हो जाती है. फिर ये रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में मूव करते हैं और मूव करते करते ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसी ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं. So clear everyone?
What red blood cells are? Red blood cells are the red in color because of the red color pigment hemoglobin, which gives them a red color. These red blood cells combined with oxygen, or the hemoglobin present in red blood cells combined with oxygen to form ऑक्सीहीमोग्लोबिन. वही ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है. रेड ब्लड सेल्स की एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज होती है. किसी भी एक रेड ब्लड सेल की हम बात करें तो उसका लाइफ स्पैन कितना होगा, एक एवरेज लाइफ स्पैन, तो वो होता है 120 डेज का. नाउ वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स आर फ्यूअर इन नंबर. रेड ब्लड सेल्स से बहुत कम होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, बट लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू रेड ब्लड सेल्स. ये अबाउट 1% होते हैं, मगर रेड ब्लड सेल्स से साइज में लार्ज होते हैं और बहुत ही वाइटल और इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में प्ले करते हैं. दे आर कलरलेस एंड डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट. जितने भी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं और उनमें किसी भी तरह का कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है. ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीज बाय डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स दैट एंटर अवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. बेसिकली दे आर द सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी. जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स उन जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर ब्लड प्लेटलेट्स. These are the cells that help in the formation of blood clot. Basically platelets जो होते हैं they are the smallest of all cells and are colorless. ये हमारे बिल्कुल कलरलेस होते हैं जैसे वाइट ब्लड सेल्स की तरह. ये स्मॉलेस्ट होते हैं. ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स इनके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होते हैं. ये इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये हमें ब्लड क्लॉट्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. एंड वाई ब्लड क्लॉटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट? ब्लड क्लॉटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वेन एवर देयर इज ए वाउंड, जब भी हमें कहीं चोट लगती है, कहीं भी वाउंड होता है, these blood platelets join together to at the wound site and forming a natural bandage preventing further blood loss. अगर हमारे में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो हमारा ब्लड किसी भी वाउंड से कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा. कंटिन्यूस फ्लो होने से हमारे ब्लड लॉस होगा and that would be dangerous to us. So blood platelets plays a very important role, that is in the prevention of blood from flowing out of the body due to an injury, and this is done by the formation of a blood clot. Now look at the diagram at your screen. These are the red blood cells. These are which are red in color, and the second one is platelets and then white blood cells. Look, platelets and white blood cells both are colorless and they do not contain any type of pigment. And then here the last one is plasma. We know that plasma is the liquid part, fluid part of the blood. So here this is the fluid part which is known as blood plasma. I hope this is clear to everyone that the components of blood includes basically two types, that is the blood plasma and blood cells. Blood plasma is present in 55% and blood cells are present in 45%. The blood cells are still further divided into three categories, that is red blood cells, white blood cells and platelets. Now in the red blood cells we have discussed about a word hemoglobin, which is the red color pigment. Now let's learn more about hemoglobin. What is hemoglobin? Hemoglobin is the red color pigment that imparts red color to the blood cells, because of which blood cells are known as red blood cells. जिसकी वजह से red blood cells को उनका नाम मिला red blood cells. Hemoglobin bind with oxygen and transport it to all parts of the body. हमें पता है कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रहे होते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे होते हैं. जो ऑक्सीजन हमारी लंग्स में होती है, लंग्स में प्यूरिफाई होती है, वो ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती, बाइंड हो जाती है. हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के बाद वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, मतलब जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन.
अब वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन से अटैच होता है, रेड ब्लड सेल्स के मूवमेंट की वजह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाने लगता है। जब ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करता है तो हमारा ऑक्सीजन भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ और अल्टीमेटली सारे सेल्स में पहुंच जाता है। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. एक क्वेश्चन हमारे मन में ये अराइज होता है ना कि मैम आपने कहा था कि लिक्विड भी हमारे फ्लो करते हैं, गैसेस भी फ्लो करते हैं, तो ऑक्सीजन तो गैस होती है, वो क्यों नहीं अपने आप फ्लो होके एक पार्ट से दूसरे पार्ट जा सकती है? वो जा सकती है, मगर सारे सेल्स तक पहुंच पाना ये डिफिकल्ट होगा ऑक्सीजन के लिए, बिकॉज दे आर सो मैनी सेल्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, और ऑक्सीजन अपने आप बिना हीमोग्लोबिन से बाइंड हुए अगर सारे सेल्स में जाने की कोशिश करेगी तो ये उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, एफिशिएंटली सारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमारे सेल्स प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स द रीज़न ऑक्सीजन मस्ट बी बाइंड विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन and then transport it to all the parts, all the body cells. So is it clear everyone? Now, since we have discussed the blood part, our circulatory system includes the second part, blood vessels. अब हम blood vessels पढ़ेंगे। blood vessels क्या होते हैं? blood जो हमारा फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है? ये कुछ ट्यूब्स और वेसल्स के थ्रू, ऐसे नहीं कि अपने आप ही मूव कर रहा है, ये हमारा जितना भी ब्लड है ये ट्यूब्स और